हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। लिंग्विस्टिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। भाषा का अध्ययन ही लिंग्विस्टिक कहलाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज के बारे में जानें। इसलिए इस चैप्टर में हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। द पॉइंट्स विल बी द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, definition of language cited by some different linguistics, characteristics of language, and the difference between human language and animal communication. Everybody knows the importance of language. Language is God's special gift. Without language, human civilization, as now we have, would have been impossible. Language is present everywhere. It is the language by which we have our thoughts, dreams, prayers, meditations, relations, communications, संस्कार्स, रिचुअल्स etc. इसके अलावा लैंग्वेज की सहायता से ही हम लोग नॉलेज को स्टोर कर पाते हैं। यहाँ तक कि लैंग्वेज ही है जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ थिंकिंग, साथ ही साथ सोर्स ऑफ लाइट, नहीं, सोर्स ऑफ लाइट जैसे सिंगिंग गिव्स अस सम डिलाइट। लैंग्वेज की मदद से हम लोग अपने नॉलेज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। So we can say language is the maker or unmaker of human relationships. यह लैंग्वेज ही है जो जीवन को बीटर और स्वीट बनाता है। It is our ability to communicate through words that makes us different from animals. Because of its omnipresence, language is often taken for granted. At first, we know the origin and development of human languages. Scholars say that the art of writing evolved between 3500 and 2900 BC. स्कॉलर्स ने कहा, जो हम लोग के पास एविडेंस है कि पेंटिंग के एविडेंस से पता चला कि आर्ट ऑफ राइटिंग 3500 से 2900 बीसी के बीच विकसित हुआ। The age of language has been put back to 6500 BC. Human beings वास्तविक में स्मॉलर ग्रुप्स में रहता था और वे कम्युनिकेशन के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्नल्स का उपयोग करता था। शायद जब डिफरेंट ग्रुप्स कॉन्टैक्ट के माध्यम से या अपनी आवश्यकताएं और क्रियाकलाप के माध्यम से नजदीक आए तो उनके सिस्टम ऑफ सिग्नल्स जो है वे अधिक कॉम्प्लेक्स हो गए और शुरुआत में केवल उनके विजुअल सिग्नल्स थे,
लेकिन विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होने के कारण ह्यूमन बींग्स वोकल सिग्नल्स की आवश्यकता महसूस किया और ऐसा एज्यूम किया जाता है कि इस तरह से कम्युनिकेशन बाय वॉइस इवॉल्व हुआ। अलग अलग लिंग्विस्ट ने डिफरेंट तरह के डेफिनेशंस लैंग्वेज के दिए हैं। जैसे पतंजलि के अनुसार लैंग्वेज इज दैट ह्यूमन एक्सप्रेशन which is uttered out by speech organs. We have different speech organs which help us in uttering our voice. According to Aristotle, speech is the representation of the experience of the mind. Whereas E. Sapir said, language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of a system of voluntarily produced symbols. हम अपनी इच्छा के अनुसार जो सिंबल्स का यूज करते हैं अपनी आइडियाज, इमोशंस या डिजायर को व्यक्त करने के लिए, उसे हम लोग लैंग्वेज कहते हैं अकॉर्डिंग टू ई सापिर। हैंडी स्वीट के अनुसार लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स कंबाइंड इनटू वर्ड्स। जो स्पीच हम लोग देते हैं वह स्पीच साउंड के रूप में हमारे स्पीच ऑर्गन से निकलता है और वह स्पीच ऑर्गन से निकलता है जो वर्ड्स में होता है और वर्ड्स में बने हुए को लैंग्वेज कहते हैं। जे वात्मो के अनुसार लैंग्वेज इज ह्यूमन, a verbal systematic symbolism, a means of transmitting information, a form of social behavior with a high degree of convention. According to R.W. Langacker, human languages are unlimited, and unlimited set of discrete signals have great structural complexity. Structure on at least two levels are open-ended, allow for the transmission of information. So, if I would tell you that what is language, you can certainly say that language is language. It means many philosophers, logicians, psychologists, literary critics, creative writers, linguists, and many others have been interested in language and have defined it from the point of view of their own disciples. So we have many characteristics of language. Language is verbal, vocal, language is sound, language is a means of communication, language is a social phenomenon, language is non-instinctive, conventional, language is arbitrary, language is symbolic, language is systematic, language is unique, creative, complex, and modifiable. Language is both linguistic and communicative competence. Language is human and structurally complex. Now, one by one, we understand the characteristics of language. Language is verbal, vocal, language is sound. Language, vocal
सिंबल्स का, साउंड्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो साउंड्स स्पीच के विभिन्न तरह के ऑर्गन्स की सहायता से माउथ से प्रोड्यूस होता है, जो मीनिंगफुल मैसेज को कन्वे करता है। इसका यह मतलब है कि स्पीच जो है वह प्राइमरी टू राइटिंग, लेकिन इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जिसके पास अपना राइटिंग सिस्टम नहीं है, फिर भी लोग लैंग्वेज है क्योंकि वे बोले जाते हैं। जैसे म्यूजिक और सिंगिंग, इसमें वोकल साउंड्स को एम्प्लॉय किया जाता है, लेकिन ये लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज इज अ सिस्टमैटिक वर्बल सिंबोलिज्म। It makes use of verbal elements such as words, sound, and phrases which are arranged in certain ways to make sentences. Now, the second one is language is a means of communication. Language is the most powerful, convenient, and permanent means and form of communication. Language बातचीत करने का एक माध्यम है। नॉन लिंग्विस्टिक सिंबल्स सच एज एक्सप्रेसिव गेस्चर्स, कुछ ऐसे भी नॉन लिंग्विस्टिक सिंबल्स हैं जैसे हाव भाव, सिग्नल्स ऑफ वेरियस काइंड्स, ट्रैफिक लाइट्स, रोड साइंस, फ्लैग्स, एम्ब्लेम्स, और बहुत ऐसे भी चीजें हैं जैसे शॉर्ट हैंड या कोड लिखना डीफ एंड डम के लिए, या ब्रेली अल्फाबेट। यह सब भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, परफेक्ट और एक्सटेंसिव लैंग्वेज की तरह नहीं है। लैंग्वेज सेल्फ एक्सप्रेशन का बेस्ट मीन्स होता है। लैंग्वेज की सहायता से ह्यूमन अपने थॉट्स को, डिजायर्स को, इमोशंस एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। लैंग्वेज की सहायता से ह्यूमन बींग्स नॉलेज को स्टोर करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है, नॉलेज एक्सपीरियंस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में शेयर करता है, यहां तक कि वह वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने के लिए लैंग्वेज ही मुख्य भाग होता है। द थर्ड वन इज लैंग्वेज इज सोशल फेनोमेनन। लैंग्वेज is a set of conventional communicative signals used by humans for communication in a community. एक समुदाय में humans लैंग्वेज की सहायता से एक दूसरे के बीच में संवाद का आदान प्रदान करता है। Language in this sense is a position of a social group which permits its member to relate to each other, to interact with each other, to cooperate with each other. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। लैंग्वेज exists in society. It is a means of nourishing and developing culture and establishing human relations. It is as a member of society that a human being acquires a language. We are not born with an instinct to learn a particular language. किसी खास भाषा को जानकर और हम लोग जन्मे नहीं, हम लोग भाषा को सोसाइटी के मेंबर से सीखते हैं,
हमारे आसपास या हमारे सोसाइटी के लोग जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ सोशल फेनोमेनन। लैंग्वेज इज अ सोशल इवेंट। The fourth one is language is non-instinctive, conventional. कोई भी भाषा एक दिन में तैयार नहीं होता है। लैंग्वेज इवोल्यूशन और कन्वेंशन का एक आउटकम होता है। प्रत्येक जनरेशन इस कन्वेंशन को एक से दूसरे तक ट्रांसमिट करते हैं। जिस प्रकार से सभी ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, लैंग्वेज also change and die, grow and expand. Every language then is a convention in a community. कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज को अपने हेरिटेज में नहीं लाता है, वह लैंग्वेज को एक्वायर करता है। जो उसके इनेट एबिलिटी है, जो जन्मजात एबिलिटी है, उस एबिलिटी में लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसे कन्वेंशनल बनाना होता है। नहीं, लेकिन एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल्स इनहेरिट देयर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बाय हेरिडिटी। नहीं, वंशानुगत होता है। एक कुत्ता जब जन्म लेता है तो वह उसके जो कम्युनिकेशन है वह हेरिडिटी होता है। द फिफ्थ वन इज लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया, 4 लेग डोमेस्टिक एनिमल्स को डॉग कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में कुत्ता कहते हैं, संस्कृत में कुकुर, कन्नड़ा में नाई, तेलुगु में कुक्कू, बंगाली में कुकुर, फ्रेंच में चाइन, जर्मन में हुंड, मराठी में कुत्रा, गुजराती में कुत्रो। इस तरह से जितने भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उसमें हम लोग अपने आर्बिट्रेरी रूप में किसी वस्तु को अंडरस्टैंड करते हैं। बाय द arbitrariness of language, we mean that there is no inherent or logical relation or similarity between any given feature of language and its meaning. That is entirely arbitrary. There is no direct necessary connection between the nature of things or ideas the language deals with. Language is arbitrary का अर्थ हो गया कि भाषा मनमाना होता है। There are many variations in different languages of the world and have no uniformity. एक रूपता नहीं है। अलग अलग भाषा में अलग अलग वस्तुओं के नाम अलग अलग होते हैं। The next one is language is symbolic. The symbolism of language is a necessary consequence of the feature of arbitrariness discussed above. A symbol stands for something else. हम अपनी भाषा में किसी वस्तु को हम सिंबल के रूप में दर्शा देते हैं। तो यह सिंबल क्या है कि लैंग्वेज को हम लोग एक सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स से हम लोग यूज करते हैं। कंसेप्ट के लिए हो या किसी वस्तु के लिए
आइडियाज के लिए या किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग के पास साउंड्स और वर्ड्स होते हैं, जिस साउंड्स और वर्ड्स को हम लोग एक सिंबल्स में यूज करते हैं। लैंग्वेज uses words essentially as symbols and not as signs. मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो हम लोग उस कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, लैंग्वेज इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग एज सिंबल्स। The next one is language is systematic. Language is systematic means भाषा क्या होता है? Systematic होता है। हमेशा भाषा को हम लोग एक सिस्टमैटिक रूप से यूज करते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है कि हम भाषा के उसके पर्टिकुलर सिस्टम के अंतर्गत अरेंज करते हैं, और वह पर्टिकुलर सिस्टम के अंतर्गत जब अरेंज करते हैं तो उस सिस्टम से वह जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट से एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है नहीं, और वह मीनिंग सिस्टमैटिक होता है नहीं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहां पे, आवर टीचर्स लाइक द स्टूडेंट्स। यहां पर जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हैं वह सिस्टमैटिक, जिससे यह एक कंप्लीट मीनिंग निकालता है। तो सभी लैंग्वेज के जो अरेंजमेंट होते हैं उनके सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं, और उस सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट की मदद से वह लैंग्वेज को एक्सप्रेस करता है। प्रत्येक ह्यूमन लैंग्वेज में सिंबल्स फाइनाइट होते हैं, वे इनफाइनाइटली अरेंज किए जाते हैं। हम लोग सेंटेंस के इनफाइनाइट सेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। एवरी लैंग्वेज में एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होता है। ऑल लैंग्वेजेस हैव फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम्स। सबके फोनोलॉजिकल और ग्रामेटिकल सिस्टम्स होते हैं। एंड विद इन अ सिस्टम देयर आर सेवरल सब सिस्टम्स। उदाहरण के लिए ग्रामेटिकल सिस्टम के अंतर्गत हम लोग के पास मॉर्फोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिक सिस्टम्स है, और इन दोनों के अंदर सब सिस्टम्स भी होते हैं जो अनेक तरह के सब सिस्टम्स हैं, जैसे पुल्लर्स बनाना, मूड बनाना, टेंस बनाना, यह सब उसके सब सिस्टम्स। तो उस सब सिस्टम के अंदर जो सब सिस्टम होते हैं, उस सब सिस्टम के अनुसार ही हम लैंग्वेज को सिस्टमैटिक बनाते हैं। और लैंग्वेज को जब हम सिस्टमैटिक बनाते हैं नहीं, तो लैंग्वेज इज अ वे ऑफ गुड सेल्फ एक्सप्रेशन। The next one is language is unique, creative, complex and modifiable. लैंग्वेज इस अर्थ का एक यूनिक फेनोमेनन है। दूसरे प्लैनेट्स के पास ऐसा नहीं देखा गया है। लैंग्वेज में क्रिएटिविटी होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, यूनिकनेस होता है। लैंग्वेज को हम मॉडिफिएबल बना सकते हैं, उसे चेंजेस कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो ह्यूमन लैंग्वेज का होता है वह न्यू अटरेंस को प्रोड्यूस करके और उसको कंबाइन किया जा सकता है।
जैसे ओल्ड इंग्लिश जो है वह मॉडर्न इंग्लिश से डिफरेंट है, और इसी तरह से ओल्ड हिंदी जो है वह मॉडर्न हिंदी से डिफरेंट है। लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत, ये सब वेरियस फॉर्म्स होते हैं संस्कृत के, जो जिसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्रिएटिवनेस होता है, यूनिकनेस होता है, कम्प्लेक्सिटी होता है। तो उसे उस तरह के डेफिनेशंस को भी हम ले सकते हैं कि लैंग्वेज इज यूनिक, क्रिएटिव, कम्प्लेक्स एंड मॉडिफिएबल। नेक्स्ट इज language is both linguistic and communicative competence. Language A language is an abstract set of psychological principles and sociological consideration that constitute a person's competence as a speaker in a given situation. हम लोग पढ़े थे कि लैंग्वेज इज अ सोशल इवेंट, मीन्स लैंग्वेज समाज के अंतर्गत सीखते हैं हम लोग, और उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल कंसिडरेशन होता है, प्रिंसिपल्स होता है, जिसको जान करके और एक पर्सन जो है एक स्पीकर के रूप में कॉम्पिटेंस करता है। तो यह कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहलाता है, नहीं, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहलाता है। और ये साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स है वह अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंस को अवेलेबल करता है, नहीं? और जो एक कंक्रीट सिचुएशन को आकर्षित करता है, और इससे हम लोग अंडरस्टैंड करने की हम लोगों में एबिलिटी आता है, और इंटायर न्यू सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज में हम कह सकते हैं एक संक्षेप में कि लैंग्वेज में कोड होता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट ऑफ इनकोडिंग। इनकोडिंग से बिल्कुल अलग है। इट इज ए स्पीकर्स लिंग्विस्टिक competence rather than his linguistic performance. And the last one is language is human and structurally complex. कोई भी दूसरा स्पीशीज नहीं है मानव को छोड़ करके जिसे लैंग्वेज से सुसज्जित किया गया है। एनिमल ह्यूमन लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर सकता है क्योंकि उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और उनके फिजिकल इनएडिक्वेंसीज होते हैं। एनिमल्स के पास ब्रेन नहीं होता है, जबकि मानव के पास ब्रेन होता है। उसके मानव के जो आर्टिकुलेटली ऑर्गन्स हैं वे एनिमल से डिफरेंट होते हैं। जो एनिमल के कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वह उसमें क्वालिटी ऑफ फीचर्स की कमी होती है, जबकि मानव में ये सब होता है। सो लैंग्वेज इज ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स मीन्स नो स्पीशीज other than humans has been endowed with language. Animals cannot acquire human language because of its complex structure and their physical inadequacies. तो अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत सारे जानवर के पास इंटर और इंट्रा स्पीशीज कम्युनिकेटिव सिस्टम होता है एक दूसरे से बातचीत करने का। जैसे बैट जब रात में चलता है तो एक रे वह प्रोड्यूस करता है, नहीं, और उसके जरिए भी वह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। तो एनिमल क्राई कर सकता है, हुट, बीट, डांस, नहीं, डिफरेंट तरह के नॉइज निकाल सकता है, और उसके जो नॉइज होते हैं वे एनिमल के जो नॉइज होते हैं वे बिल्कुल ह्यूमन से डिफरेंट होते हैं। ह्यूमन का लैंग्वेज अनलिमिटेड होता है, इनफाइनाइट होता है, जबकि एनिमल के कम्युनिकेशन सिस्टम, एनिमल का जो कम्युनिकेशन है वो लिमिटेड और फाइनाइट होता है।
एनिमल कम्युनिकेशन वह कम्प्लेक्सिटी, जटिलता, नॉबिलिटी, नयापन, मल्टीप्लिसिटी, गुण बहुलता और क्रिएटिविटी ये सब नहीं होता है, जबकि मानव के पास ये सब होता है। एनिमल कम्युनिकेशन जो है वह क्लोज सिस्टम कहलाता है। यह इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, इसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। नहीं, मधुमक्खियां या मंकीज सेम कम्युनिकेशन सिस्टम का जो आज से 500 साल 5000 साल पहले जिस सिस्टम का यूज करते थे, आज भी वे उसी सिस्टम कम्युनिकेटिव सिस्टम का यूज कर रहे हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन में कम्प्लेक्स होता है, ह्यूमन कम्युनिकेशन कम्प्लेक्स होता है, जबकि एनिमल कम्युनिकेशन में यह नहीं होता है। ह्यूमन कम्युनिकेशन टाइम और जियोग्राफी के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो एनिमल है उनका एनिमल कम्युनिकेशन वह कोई कंडीशन नहीं होता है जियोग्राफी पर, चाहे वह अमेरिका में जन्म लिया हो या इंडिया में या एनी अदर प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, उनका जो वॉइस होता है, उनका जो क्राई करने का होता है, नहीं, वह सब सेम होता है। ह्यूमन लैंग्वेज जो है वह इफोर्ट से बहुत अधिक एक्वायर किया जा सकता है, नहीं, और वह सोशल इंटरेक्शन में भी काम करता है, नहीं, जबकि एनिमल लैंग्वेज में ये सब चीज नहीं होता है। नहीं, ह्यूमन लैंग्वेज ग्रामेटिकली आधारित होता है, हैज ग्रामेटिकलिटी, लेकिन एनिमल कम्युनिकेशन में दे हैव नो ग्रामेटिकलिटी। इस तरह से ह्यूमन लैंग्वेज में मच वाइडर रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मॉडिफिकेशन, चेंज, वैरायटी, क्रिएटिविटी एटसेट्रा देन एनिमल कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन में दो एलिमेंट ऑफ द मिमिक्री है वह more than in the it is in the animal communication. The organs of a speech by which humans produce sounds form a rare gifts of nature to man. यह भगवान के द्वारा या नेचर के द्वारा नहीं, एक रेयर गिफ्ट है, एक सबसे बढ़िया गिफ्ट है, द बेस्ट गिफ्ट विच वी हैव, नहीं, एंड वी गेट फ्रॉम नेचर गॉड। नहीं, कोई भी ऐसा स्पेसीज नहीं है, केवल एप्स और मंकीज को छोड़ करके जिसको यह नहीं गिफ्ट दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम लोग कहें कि व्हाट are the differences between human language and animal communication system, so on a screen you have seen I have differentiate some points. The point one, unlimited and infinite in human language, whereas animal communication limited and infinite. Human language open system, animal communication closed system. Human language extendable, modifiable, whereas animal communication unextendable, unmodifiable. Human language flexible and full of variety, whereas an animal communication inflexible and without variety. Human language is non-instinctive, whereas animal communication system is instinctive. Human language is acquired. नहीं, human can acquire this language, नहीं, his language or her language, but animal communication system is inherited, नहीं, conditioned by geographical in human language and not conditioned by geographical, full of nobility and creativity in human language, and this nobility, creativity, etc. are not present in animal communication. So 12 points I have mentioned here. So this chapter has been finished, and in this chapter the one question always
asked in the examination, that is, write the difference between human language and animal communication system. मैंने इसका PDF क्वेश्चंस का PDF जो है वह आंसर के साथ मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।